Hello everyone, welcome to Perfection IS. Today in this video, we'll discuss the questions of UPSC Mains 2023 GS1 paper, in particular the history questions. So there were total 4 absolute history questions, 2 questions from 10 marker and 2 questions from 15 marker. So we'll discuss one by one in detail. Okay, basically I'll be giving you the model answers, what to write, how to write and what kind of content you have to put in these kind of factual questions. So पहला question ये था, what is the difference between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in their approach towards education and nationalism? So here these kind of questions can be solved from a topic. We have a topic called contributors. If you see the syllabus, you will see contributors of freedom struggle. So there are around some important personalities. It means personalities: Gandhi, Ambedkar, Tagore, Rajendra Prasad, and Subhash Chandra Bose. So all these things you have to cover because questions are asked from personalities. Okay, so here we'll give an approach towards education and nationalism. Now what is the difference between these two personalities? So पहले in introduction हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 lines on both personalities. You can write any line because see the question is about 150. It is 150 words. So you have to be very fast because we need to adhere to the word limit also. So 2 lines you can write on both personalities. Yes, both had different approach and ideology. Now coming to the main body part, that is the analysis part. Here first of all we'll start with education. In education, when it comes to Mahatma Gandhi, we all know he started the Wardha basic education, Wardha scheme of basic education, which is called the Nai Talim. So here you can write about, he focused on mother tongue, that is vernacular language. Okay. He also told 7 years of free education, 7 years of free education. Okay. No religious education, no religious education. So these 3 points you can write on this Wardha scheme of basic education of 1937. Second point is moral education. He focused your education should be moral. So moral education is greater than formal education. He advocated, so in a sentence format you can write, he supported moral education more than formal education because it is mentioned in his biography, that is the story of my experiments with truth. So he was more into moral education, vernacular education. Okay, fine. Now coming to Rabindranath Tagore on education. Now see, Rabindranath Tagore was more of like he wanted the Western education and Eastern education should infuse together. So Eastern and Western education infusion, that is infusion of both Eastern side education and Western side education should come together, more of like Raja Rammohn Roy when it comes to this particular education part. Second is education should have all round personality development. It is not more only, it's not only into knowledge. Yes, it is knowledge, but it is more into, apart from accumulation of knowledge, it should have overall personality growth. Okay. He was against classroom rote learning. He was not in favor of rote learning. Okay. Now also you can mention that education he founded the Vishwa Bharati, that is a central university in Shanti Niketan. So this point also you can write when it comes to education of Rabindranath Tagore. Now coming to the second part, that is nationalism. दोनों के बीच में nationalism में क्या फर्क था? See, गांधी का nationalism हम आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं because the thing is it is again a 150 word. You can write essay on this, but the thing is 150 word पे 2 dimension, 2 personality. So that is the challenge कि 2 dimension दिया है आपको, nationalism के ऊपर भी लिखना है, आपको एजुकेशन के ऊपर भी लिखना है और आपको 2 पर्सनालिटी के बारे में लिखना है, दैट टू इन 150 वर्ड. सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज. सो यू हैव टू राइट इट इन अ वेरी शॉर्ट वे बट येट इंफॉर्मेटिव. सो यहाँ पे एक ही पॉइंट में मास मोबिलाइजेशन, सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस, तो ये सब कहीं ना कहीं एक्टिव रेजिस्टेंस का पार्ट है.
ओके तो बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट सर्विस, हमेशा उनका जो सिविल डिसोबीडियंस ले लीजिए या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ले लीजिए, ही वाज ऑलवेज इनटू बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। उनका स्वराज थोड़ा अलग था। उनका स्वराज ये था कि यस, इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉलोनियल रूल बट ऑल्सो इट शुड हैव ए मोरल कनोटेशन, दैट इज इंडिपेंडेंस फ्रॉम इमोरल एक्टिविटीज। उनका स्वराज इंडिपेंडेंस भी था प्लस इट वाज ऑल्सो अ मोरल कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो ये ओवरऑल गांधी का व्यूज ऑन नेशनलिज्म में था। नो कमिंग टू नेशनलिज्म ऑन रविंद्रनाथ टैगोर। नो यहाँ पे मैं पहले पॉइंट ये लिखूंगा कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ही ऑलवेज फाउंड ह्यूमनिज्म ग्रेटर देन नेशनलिज्म। उन्होंने हमेशा ह्यूमैनिटी को नेशनलिज्म के ऊपर रखा है। ऐसा मतलब ये नहीं है कि ही डिड नॉट फेवर नेशनल, ही वॉज ए नेशनलिस्ट बट ही ऑलवेज had a bigger support towards humanism, or you can say humanity. He did not support Gandhi's active mass mobilization of non-cooperation movement. उन्होंने जो गांधी जी का जो बहुत ही एक्टिव मास मोबिलाइजेशन था, बहुत सारे लोग यूथ से लेके कॉलेजेस से लेके वुमेन से लेके एवरीवन वाज सपोर्टिंग, ही वाज नॉट इन फेवर। नाउ देयर इज अ रीजन फॉर इट। उन्होंने ये बोला कि यूथ जो होती है उनको एजुकेशन की ज़रूरत है। दे शुड नॉट बॉयकॉट देयर स्कूल्स, दे शुड नॉट बॉयकॉट देयर कॉलेजेस एंड डाई इनटू द नेशनल मूवमेंट। उनको ऐसा लगा कि वो एजुकेशन को ज़्यादा देना चाहिए। तो दैट इज़ द रीज़न वाई ही डिड नॉट सपोर्ट गांधीज एक्टिव मास मोबिलाइजेशन। और जब नेशनलिज्म की बात आती है तो यहाँ पे हम ये पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि ही रिटर्न्ड द नाइटहुड जो उनको मिला था आफ्टर द जलियनवाला बाग मैसेकर, ही रिटर्न्ड इट, वेरी कॉमन पॉइंट। और ये यूनिवर्सलिज्म में बिलीव करते थे, जैसे कि हमारा जो गाना है नेशनल एंथम दैट इज द जनगण मन। जनगण मन जो गाना है ये इट टॉक्स अबाउट डाइवर्स पॉपुलेशन, इट स्पीक्स अबाउट डाइवर्सिटी, कहीं ना कहीं एक नेशनल यूनिटी की बात कर रहा है। इट टॉक्स अबाउट नेशनल यूनिटी। जब नेशनल यूनिटी की बात हो रहा है तो जाहिर सी बात है इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनलिज्म। तो ये पॉइंट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और ख़ास करके जब स्वदेशी मूवमेंट की बात आती है तो स्वदेशी मूवमेंट में नेशनलिज्म उन्होंने नेशनलिज्म पैदा किया था लोगों में, कैसे? थ्रू सॉन्ग्स, थ्रू लिटरेचर, ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अलग अलग तरीके का हम लिख रहे हैं। हम ह्यूमनिज्म के बारे में लिख रहे हैं, हम गांधी के नॉन कोऑपरेशन मास मोबिलाइजेशन के खिलाफ कैसे थे, उन्होंने भी अपना नेशनलिज्म कैसे किया था। ये 4 और 5 पॉइंट्स में हम कहीं ना कहीं एक हॉलिस्टिक व्यू पॉइंट दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करके हम एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि यस, बोथ हैड देयर ओन शेयर in the nationalism or in our freedom struggle, but yes they had their own viewpoints. उनका अलग अलग व्यू पॉइंट था। ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे से लड़े थे, but yes they respected each other, but yes having said that they both had their different ways of nationalism. Now coming to the second question, और एक क्वेश्चन था, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, वैदिक से आया है। What are the main features of वैदिक सोसाइटी? तो यहाँ पे भी दो चीज़ है, एक है सोसाइटी और एक है रिलीजन। सो ये 250 वर्ड्स में है, तो हम आराम से लिखेंगे, सोसाइटी के बारे में लिखेंगे, रिलीजन के बारे में लिखेंगे। और यहाँ पे और एक चीज़ भी लिखा है कि डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी? क्या वैदिक सोसाइटी और वैदिक रिलीजन आज भी हमारे सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है? सो यहाँ पे हम इस आंसर को हॉलिस्टिकली करेंगे। वैदिक को ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक में लिखेंगे सोसाइटी को लेके। रिलीजन को भी हम दोनों पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऋग्वैदिक एंड लेटर वैदिक। तो ये हो गया आधा पार्ट यहाँ तक। फिर हम ये लिखेंगे क्या ये आज के डेट में कितना, कौन सा ऐसा फीचर है वैदिक के सोसाइटी और वैदिक के रिलीजन को जो आज भी प्रिवेल करता है इंडियन सोसाइटी में। नाउ इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे हमेशा, जैसे कि मैं पहले भी मेंस क्लासेस में इन और मेंटरशिप प्रोग्राम आई यूज्ड टू से अगेन एंड अगेन कि व्हेन आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो और कोई भी एरा क्वेश्चन आया है, वैदिक हो सकता है, महाजनपदस हो सकता है, मौर्यस हो सकता है, हमेशा आप इंट्रोडक्शन में टाइमलाइन, यू कैन मेंशन द टाइमलाइन, ये 1500 से 600 बीसी का है और लिख सकते हो वैदिक सोसाइटी आई थी, आईवीसी के बाद आई थी और आर्यंस का एंट्री हुआ था। 2 लाइन्स का आप इंट्रो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द एनालिसिस। एनालिसिस में पहले क्वेश्चन सोसाइटी के बारे में दिया है, तो क्लियर कट हम यहाँ पे टेबल कर लेंगे। सोसाइटी में ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक। ना ऋग्वैदिक में सोसाइटी बहुत ही सिंपल था, लार्जली एग्लिटेरियन था।
ओके, सिंपल था और एगलिटेरियन था और यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं था। व्हेन इट कम्स टू ऋग्वेदिक, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की, इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। और वुमेन एंजॉयड इक्वल राइट्स, उनका जो सभा समिति था, जो ट्राइबल असेंबलीज हम बोलते हैं, यहाँ पे वुमेन को एंट्री था व्हेन इट कम्स टू ऋग्वेदिक। और विडो रीमैरिज भी ऋग्वेदिक में था। बट व्हेन इट कम्स टू लेटर वैदिक में जो कास्ट सिस्टम है वो रिजिड बन गया। कास्ट सिस्टम बिकम वेरी रिजिड क्लास डिस्टिंक्शन, 4 वर्नस, और कास्ट बन गया हेरिडिटरी। और पहली बार वुमेन के स्टेटस का डिक्लाइन होना चालू हो गया, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन स्टेटस ऑफ वुमेन, एंड विडोज वर नॉट अलाउड टू री मैरी। तो हम जब आज के डेट में कौन सा ऐसा फीचर है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है, डू यू फील कि आज के डेट में भी कुछ फीचर्स इन मॉडर्न सोसाइटी में भी है, तो यहाँ से ही हम पॉइंट उठा के आगे लिखेंगे कि क्या क्या वैदिक सोसाइटी का फीचर्स आज के डेट में भी है, वो हम आगे लिखेंगे। सो सिमिलरली रिलीजन को कवर करेंगे यहाँ पे। रिलीजन में ऋग्वेदिक में आइडल वर्शिप नहीं था, एनिमिज्म था। एनिमिज्म हम सबको पता है, वर्शिप ऑफ नेचर इज कॉल्ड एनिमिज्म। ठीक है, यहाँ पे नेचर को पूजा करते थे, अग्नि हो गया, इंद्र हो गया, तो ये आज भी चलता है, हम आज भी अग्नि को पूजा करते हैं। ठीक है, रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस। रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस जो थे, जो आज के डेट में उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब आज के डेट में तो है लेकिन ऋग्वेदिक में नहीं था, लेकिन ये चीज़ लेटर वैदिक में बहुत बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आइडल वर्शिप प्रिवेलेंट हो गया, आइडल्स वर्शिप। न्यू गॉड्स आ गए, प्रजापति विष्णु हम आज भी पूजा करते हैं। प्रिस्ट क्लास का डोमिनेशन बढ़ गया, और सैक्रिफाइस का कल्ट बहुत था। द कल्ट प्रथा, कल्ट मीन्स प्रथा, द कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस, जैसे कि किलिंग ऑफ एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल, ये आज भी होता है। आज भी कुछ पूजा पे आप देखेंगे तो सैक्रिफाइस होता है एनिमल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि सम फीचर्स विच आर स्टिल प्रिवेलेंट इन आवर मॉडर्न सोसाइटी। तो आज के डेट में भी क्या क्या फीचर प्रिवेलेंट है। तो पहले कास्ट सिस्टम आज भी रिजिड है। बहुत सारे जगह पे इंडिया में आज भी कास्ट सिस्टम है। कास्ट को हटाना उतना मुश्किल, उतना इजी नहीं है, बिकॉज इट इज़ एम्बेडेड इन आवर माइंड्स, इट इज़ एम्बेडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत सारे जगह वो कास्ट का एक अलग क्वेश्चन भी आया है GS1 सोसाइटी में, हम दूसरे क्लास में कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कास्ट सिस्टम रिजिड है स्टिल इन मेनी एरियाज ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हम ये लिखेंगे कि वैदिक में क्या हुआ। वैदिक में ब्राह्मणिज्म आई, हिंदुइज्म नहीं आई थी। इट वॉज ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। तो ये जो चीज़ आज भी ब्राह्मण सुप्रीमेसी स्टिल देयर, ब्राह्मण्स को हम ऊंचे जाति की तरह देखते हैं, आज भी ये है। तो ब्राह्मण सुप्रीमेसी स्टिल देयर, व्हिच इज नथिंग बट अ वैदिक कॉन्सेप्ट। वैदिक से ही तो आया है, अभी तक है। और ब्राह्मणिज्म से ही हम यहाँ पे और एक ब्रांच आउट पॉइंट लिख सकते हैं कि दिस लेड इवेंचुअली टू हिंदुइज्म, खास करके गुप्ता में। ठीक है, और जो गुप्ता में जो हिंदुइज्म है वो आज के डेट का हिंदुइज्म है। तो गुप्ता एज हिंदुइज्म इज नथिंग बट कंटेम्पररी हिंदुइज्म, इज नथिंग बट कंटेम्पररी हिंदुइज्म। और ये हिंदुइज्म आया कहाँ से? कहीं ना कहीं इसका जो जेनेसिस है ये वैदिक एरा के ब्राह्मणिज्म को जाता है। तो इसी पॉइंट में मैं ये डायमेंशन लिखूंगा कि ब्राह्मणिज्म से हिंदुइज्म आया, हिंदुइज्म का जो गुप्ता हिंदुइज्म है वो कहीं ना कहीं आज के डेट का हिंदुइज्म है। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे। थर्ड पॉइंट इज एनिमिज्म। एनिमिज्म इज नेचर वर्शिप। नेचर वर्शिप आज भी प्रिवेलेंट है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि हम पेड़ पौधे को भी पूजा करते हैं, ट्रीज को पूजा करते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा है सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स बहुत ही रूरल एरियाज में पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेड़ है, ट्रीज है, जहाँ के हम उसको पूजा करते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स। तो सेक्रेड ग्रुप्स को हम पूजा करते हैं। ट्रीज हो गया, अग्नि, जैसे कि हवन होता है, जहाँ पे अग्नि होता है वो आज भी है। सन गॉड को भी, सूर्य भगवान को भी हम पूजा करते हैं। तो ये सब आज के डेट में जो कहीं ना कहीं वैदिक से आया है। नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ वुमेन। स्टेटस ऑफ वुमेन, उस टाइम पे स्टेटस ऑफ वुमेन आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन किया, खास करके लेटर वैदिक में। ठीक है, और इतना हो गया, इतना आहिस्ता आहिस्ता वुमेन का स्टेटस गिरने लगा, स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर वैदिक, इवेंचुअली इन अदर डायनेस्टीज, इन गुप्ता, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। मौर्यन भी गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, मिडियवल, मॉडर्न होते होते आज के डेट में इतना हो गया कि वुमेन का जो स्टेटस है वो मतलब उतना इक्वल राइट्स में हम नहीं देखते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है पैट्रियर्की। सो पैट्रियर्की कॉन्सेप्ट आज भी है, ये भी पुराना था। एग्जाम्पल देंगे
ओनली 11 to 12% वुमेन मेंबर्स आर इन पार्लियामेंट, अब ओनली 10 to 12% मेंबर्स। तो ये एग्जाम्पल हम यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे, ये कुछ नहीं बस पैट्रियार्की का पार्ट है जो कि वैदिक से शुरू हुआ था। सो कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि द सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द वैदिक सोसाइटी टू सम एक्सटेंट स्टिल इज प्रिवेलेंट इन मॉडर्न टाइम्स, देयर बाय शोइंग द रेलिवेंस ऑफ एंशिएंट ट्रेडिशंस इन कंटेम्पररी टाइम्स। कि आज जो चीज़ है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें वैदिक से आया है, तो ये साफ जाहिर होता है कि एंशिएंट ट्रेडिशन का रेलिवेंस कितना हमारे मॉडर्न सोसाइटी में आज भी है। ऐसे करके आंसर को हम एंड करेंगे, ठीक है, फाइन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सुल्तानत पीरियड? How did these technological changes influence the Indian society? Now ये क्वेश्चन मेडिवल का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेडिवल से आया है, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप मेडिवल अच्छे से पढ़े हो तो आप ये आंसर लिख सकते हो। क्या क्या टेक्नोलॉजिकल हुआ है? गन पाउडर का हुआ है, पेपर टेक्नोलॉजी हुआ है, वाटर टेक्नोलॉजी हुआ है, ये सब टेक्नोलॉजी के बारे में हम लिखेंगे और कैसे ये इंडियन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया उस टाइम पे, ठीक है, फाइन। ना इंट्रोडक्शन में जैसे कि मैंने बोला कि ये सुल्तानत पीरियड का है, तो सुल्तानत पीरियड का डायनेस्टी 4 डायनेस्टी है, वो आप लिख सकते हो एक एक लाइन में, और उनका टाइमलाइन दे सकते हो 12 to 16 सेंचुरी एडी, ठीक है। फिर हम मुद्दे पे आएंगे, दैट इज द एनालिसिस, दैट इज क्या क्या मेन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुआ है। पहले तो आर्किटेक्चर में हम सबको पता है ट्रू आर्क और डोम्स आए हैं, कुतुब कॉम्प्लेक्स का एक एग्जाम्पल दे देंगे। मिलिट्री टेक्नोलॉजी में हम लिख सकते हैं गन पाउडर का इंट्रोडक्शन हुआ है यहाँ पे। वाटर मैनेजमेंट हम लिख सकते हैं बाउली, जिसको हम स्टेप वेल बोलते हैं, ये इन्हीं का है, इसी में आया है। फिर उसके बाद मुगल में भी बहुत बाउलीज आए हैं, तो ये एक वाटर हार्नेसिंग कैपेबिलिटीज़ उनका दिखा है, जैसे कि राजो की बाउली, मेहरौली यहाँ पे है दिल्ली में, ठीक है। और पेपर इंडस्ट्री भी हुआ है, जैसे कि पहले पाम लीव्स यूज़ होता था, अभी ये शिफ्ट हो गया टू द यूज़ ऑफ पेपर। ये भी सुल्तानत पीरियड में, दिल्ली सुल्तानत के पीरियड पे पेपर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। तो इसका इन्फ्लुएंस क्या है? इसका इन्फ्लुएंस ये है कि जब वॉरफेयर डायनामिक्स चेंज हो गया, चेंज इन वॉरफेयर डायनामिक्स। जैसे कि यूज़ ऑफ गन पाउडर इन मुगल टाइम्स, बाबर भी आके गन पाउडर यूज़ किया, तो ये कहीं ना कहीं जो वॉर डायनामिक्स था वो चेंज हो गया गन पाउडर यूज़ होते हुए। इवन द फोर्ट्स डिफेंस वॉल जो होता है, फोर्ट का जो वॉल होता है, दे वर थिकेंड एंड री इन्फोर्स्ड टू विथस्टैंड मिलिट्री अटैक्स। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ गन पाउडर। लिटरेचर में भी बूस्ट मिला, वॉरफेयर में हो गया, लिटरेचर में भी बूस्ट मिला। जैसे कि राइटिंग पेपर, जब बहुत ज़्यादा तरीके से पेपर यूज़ हुआ तो बहुत सारे जो पोइट्स थे वो सब लिखने लगे, तो उनका जो लिखित जो राइटिंग्स था वो सब बाहर जाने लगा, बहुत अलग अलग जगह पे जाने लगा, लोग जानने लगे, ठीक है। जैसे कि राइटिंग्स ऑफ अमीर खुसरो, ये भी एक मिडिवल टाइम, खास करके सुल्तानेट टाइम के पोइट था अमीर खुसरो, वेरी फेमस। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक एमलगमेशन हो गया यहाँ से, और ये जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर यहाँ पे हुआ और ये आगे जाके इवन मुगल टाइम्स में और पीक पे आया, ठीक है। एमलगमेशन ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर मुगल टाइम, यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो, कोई भी बहुत सारे आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल्स है, आप यहाँ पे कोई भी एक एग्जाम्पल, आप 1-2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ओवरऑल एक इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ क्योंकि एग्रीकल्चर यूज हो रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर यूज है बिकॉज एडवांस वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज हो रहा है, बाउलीज आ गए, तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी भी उस टाइम का जो इंडियन इकोनॉमी था वो भी बढ़ने लगा। सो कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि द सुल्तानत पीरियड इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस which helped the upcoming dynasties in reshaping various facets of society। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वो यहाँ पे लाए, ये आगे के अपकमिंग डायनेस्टीज में बहुत हेल्प आया, ये करके आप लिख सकते हो। बहुत सारा और 2-3 और भी टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो आप जो भी आंसर लिख रहे हो तो मेक श्योर यू राइट इन वर्ड लिमिट, ठीक है, ओके। So this was it, these 4 questions came from I think one more question is there. Yeah, one more question. The last question is, how did the colonial rule affect the tribals in India and what was the tribal response? Tribal response क्या था ये colonial operation को लेकर? काफ़ी direct question है,
ट्राइबल्स को लेके, ठीक है। सी दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में मिल जाएगा। आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ते हो तो ओवरऑल व्यू पॉइंट से आपको चीज़ें उठा के इस आंसर में लिखना है, ठीक है। ओके, सो इंट्रोडक्शन में पहले हम लिख सकते हैं कि द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस ब्रॉट बाय द ब्रिटिश अफेक्टेड द ट्राइबल कम्युनिटीज ड्यूरिंग दोज टाइम्स। बहुत सारे ऐसे पॉलिसी लेके आए थे ब्रिटिश जो कि लगभग सारे कम्युनिटीज़ को तो हार्म किया ही था या फिर अफेक्ट किया था, लेकिन ये क्वेश्चन ट्राइबल के बारे में है, कैसे ट्राइबल्स को अफेक्ट किया। दीज आर बिकॉज ऑफ द वेस्टेड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश। जो वेस्टेड इकोनॉमिक इंटरेस्ट था उन्हीं के लिए पॉलिसी लाए थे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट किया ट्राइबल्स को। ओके, व्हाट आर द इफेक्ट्स? तो इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन ट्राइबल्स, पहले तो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम्स वैसे तो सबके लिए था, पीजेंट्स इवन ट्राइबल्स के लिए होगा, तो हम ट्राइबल्स का डायमेंशन यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट हो गया, वेरियस फॉरेस्ट एक्ट्स हो गया, उन्होंने एलियनेटेड कर दिया ट्राइबल्स को, एलियनेटेड द ट्राइबल्स फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल लैंड्स। यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1882 क्या किया था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो ट्राइबल्स करते थे, शिफ्टिंग उसके ऊपर रोक लगा दिया, रेस्ट्रिक्टेड, तो ये अफेक्ट किया था ट्राइबल्स को। उनका जो कल्चर था वो इरोड हुआ या फिर इरोजन ऑफ देयर कल्चर। कैसे? क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे, क्रिश्चियन मिशनरीज आने लगे कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, टू कन्वर्ट एवरीवन इनटू क्रिश्चियनिटी। तो ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे और देयर एक्टिविटीज था, इट लेड टू लॉस ऑफ देयर ट्राइबल कल्चर, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में खास करके जो मेघालय एरिया है, आसाम एरिया है, वहाँ पे बहुत हुआ था ये, वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत गए थे और उन्होंने कन्वर्ट किया था क्रिश्चियनिटी में, खास करके नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। वैसे तो इंडिया में हर जगह किया था, लेकिन यहाँ पे हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में लिखेंगे बिकॉज ट्राइबल्स वहाँ पे बहुत है। और एक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्राइबल्स बाई मनी लेंडर्स। और ये क्यों हुआ था? बिकॉज ये जो मनी बेस्ड इकोनॉमी ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था, जब मनी बेस्ड इकोनॉमी किया तो जाहिर सी बात है मनी लेंडर आएंगे, बिकॉज ट्राइबल्स के पास तो पैसे उतना नहीं होते हैं, तो मनी लेंडर आए थे जो पैसे उनको देंगे, लेकिन उसके बाद उनको एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे द संथाल्स वेयर एक्सप्लॉइटेड, खास करके जो छोटा नागपुर प्लेट्यू के रीजन पे है। सेंडिंग ट्राइबल्स एज लेबर, बाहर भी भेजते थे, ठीक है। इंडेंचर्ड लेबर्स यहाँ पे लिख सकते हो, इंडेंचर्ड लेबर्स हम पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे भी फोर्सफुली भेजते उनको अदर ब्रिटिश कॉलोनीज में, बाहर के ब्रिटिश कॉलोनीज में उनको एज ए फोर्स लेबर या फिर स्लेवरी बोल सकते हो, ऐसे करके भेजते थे। और जो है बहुत सारे ट्राइबल्स को उन्होंने नोटिफाई किया बीइंग क्रिमिनल, और वो एक्ट का नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871, ठीक है। उनको बॉर्न क्रिमिनल का टैग मिला था और वही चीज़ बाद में इंडिपेंडेंस के बाद डी नोटिफाई किया गया, सरकार ने उनको डी नोटिफाइड ट्राइब्स बोला बाय आवर गवर्नमेंट, बाय आवर इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। इसको DNT बोलते हैं। ये करंट अफेयर में भी है, बहुत सारे कमीशन इनके लिए बिठाया गया है, ठीक है। ओके, तो रेस्पॉन्स क्या था ट्राइबल का? रेस्पॉन्स पहले तो ऑब्वियसली रेबेलियन तो होगा ही, तो यहाँ पे एक एग्जांपल आप संथाल रेबेलियन लिख सकते हो, एक रेबेलियन, बहुत सारे रेबेलियंस हुए थे, उनमें से एक एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट भी हुआ था, जैसे कि ताना भगत मूवमेंट, ताना भगत मूवमेंट ओरावन ट्राइब बिहार में हुआ था, बिहार झारखंड में ताना भगत मूवमेंट। तो इट अपोज टैक्सेस, फोर्स्ड लेबर जो टैक्सेस होता था वो सब अपोज किया ये मूवमेंट ने। सो ये कहीं ना कहीं एक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट करके ब्रिटिश के खिलाफ शुरू हुआ था। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी हुआ, जब पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन मतलब ट्राइब्स का एक लीडर अपने ट्राइब्स के हक के लिए आवाज़ उठाई। यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप बिरसा मुंडा का लिख सकते हो, तो मुंडा रिवोल्ट, यहाँ पे भी ये एक डायमेंशन हो सकता है। कुछ ऐसे थे जो कि अडॉप्ट किए थे, ब्रिटिश का पार्ट भी अडॉप्ट किए थे। फॉर एग्जाम्पल सम ट्राइबल कम्युनिटी इन मेघालय एम्ब्रेस्ड, उन्होंने एम्ब्रेस किया था जो एजुकेशन लेके आए थे ब्रॉड बाई क्रिश्चियन मिशनरीज, उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो चीज़ को एम्ब्रेस किया, बट येस दे मैनेज्ड टू इंटीग्रेट इट विद देयर ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड वैल्यूज़, ठीक है। तो ये डायमेंशन करके हम लिखेंगे आंसर को, और हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि यस, अगर पॉलिसी से ब्रिटिश पॉलिसी को, वैसे तो हर कोई एक्सेप्ट हुआ था, लेकिन जब एक लिखने के लिए हम एंड में लिखेंगे कि यस, एक इवोल्यूशन था ट्राइबल्स लोग का, उनके ऊपर बहुत सारे लाइक जुल्म हुए थे, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिस इज़ हाउ दे हैव रिएक्टेड व्हेन समवन कम्स एंड like attacks their own culture
और देयर ओन रिचुअल्स। तो ऐसे करके आंसर को एंड करेंगे। तो दिस 4 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 and our new batch is starting on 20th of this month in Delhi, Rajendra Nagar branch of Perfection IAS. So anyone who wants to join of the foundation course of our UPSC batch, so they can come to the center, talk to us. The full course with proper guidance, mentorship, with proper test series at every weekend, whole year, everything, and like 1-to-1 mentorship and how to study at self study. इन घर पे आप कैसे पढ़ेंगे सेल्फ स्टडी में, यहाँ पे आप कैसे आंसर लिखेंगे, everything 1-to-1 will be provided by the team of Perfection IAS. Thank you.